Hello students, in today's lecture we are going to proceed with exercise 11.2. In very first lecture we have studied two formulae, area of trapezium and area of quadrilateral. So based on that formula we will observe questions in this exercise 11.2. So first question, the shape of a top surface of table is trapezium. ट्रेपेजियम शेप में हमारे पास टेबल का टॉप है. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter. Parallel sides के लेंथ हमारे पास है यहाँ पे 1 and 1.2 meters. Perpendicular distance between them is 0.8. Perpendicular distance between parallel lines, it means this will be the height of the trapezium, is 0.8 meters. Then we have to find the area of trapezium. Now parallel sides are 1 meter and 1.2 meters. Height is 0.8 meters. Then area of trapezium is half into height into sum of parallel sides. So half, let us substitute the values. Height 0.8 meter and sum of parallel sides 1 plus 1.2. Okay, so half 0.8, let it be converted into the fraction, so 8 by 10. 1 plus 1.2, that will be 2.2, and in fraction it will be 22 by 10. So 2 11s are, so 11 8s are 88 upon 100, so this will be 0.88 meter square. Okay, so area of top of the table or area of trapezium, that will be 0.88 meter square. Okay, let us cross check the answer. So write it down, then we'll proceed with question 2. Okay, now question 2. The area of trapezium is 34 centimeter square. ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड. मतलब यहाँ पे हमारे पास एरिया है, हाइट है, दो पैरेलल साइड में से एक का लेंथ है और एक ढूंढना है. तो सेम फॉर्मूले विल बी एप्लीकेबल. वी कैन से दैट हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. One parallel side is equals to 10 centimeter. So let other parallel side be x. Okay, then area of trapezium is equals to 34 centimeter square. So area of trapezium will be half into height into sum of parallel sides equals to 34. So half, height is 4 centimeter, sum of parallel sides 10, and another one is x, which we have assumed, equals to 34. Now we want to make x subject, so we will simplify the things and rest of the things will be at the right hand side. So 2 2s are 4 and 10 plus x is equals to 34 by 2. Here this 2 is in multiplication with this bracket, so if we shift it to the right hand side it will be in the denominator or in division. Then 17 2s are 34,
So 10 plus x is equals to 17. So x equals to 7 centimeters. So therefore other parallel side will be 7 centimeter. Let us cross check the answer. Correct. So write it down, then we proceed with third one. Okay. Now question 3. Length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD दिया है और उसके फेंसिंग का लेंथ जो है वो 120 मीटर है। अब ये एक हमें समझना चाहिए कि फेंसिंग जो होता है वो हमेशा बाउंड्री पे होता है। हमें फेंसिंग का लेंथ दिया हुआ है, मतलब कि इस ABCD के चारों बाउंड्रीज का एडिशन हमें दिया है, यानी कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 120 मीटर। ओके, इफ BC इज इक्वल्स टू 48 meters, CD is equals to 17 meters, AD is equals to 40 meter, then find the area of this plate। हमें एरिया ढूंढना है। साइड AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। AB जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमेशा हमें उल्टा सोचना चाहिए, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ तो ठीक है, पैरेलल साइड्स है 40 एंड 48, पर हाइट हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़े, हाइट ढूंढना पड़े। ये हाइट क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही प्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाइट ढूंढने के लिए हम पेरीमीटर का यूज करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 120 मीटर, सो दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर। सो perimeter of trapezium is how much? 120 meter. So we can say that AB plus BC plus CD plus AD equals to 120 meters. So AB we want to find. BC is 48, CD is 17 and AD is 40, is 120 meter। AB हमें ढूंढना है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी गेट एडेड एंड शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। सो AB is equals to, AB plus this will be 88, 98 and 105 equals to 120. So AB is equals to 120 minus 105, that is 15 meters. So now we have height. So we can say like this, height H is equals to 15 meter. Parallel sides are 40 and 48 meters. Okay, so इधर हम शॉर्ट में लिख दे, पूरा ना लिखे तो भी चले। लाइक दिस, एरिया ऑफ ABCD is equals to half into height into sum of parallel sides. So half, height 15, sum of parallel sides 40 plus 48. So 40 plus 48, that will be 88. So 2 and 44. So 15 into 44. And this will be 660 meter square. So area of trapezium shaped field will be 660 meter square. Let us cross check the answer. Correct.
Then write it down. Then we'll proceed with question 4. Okay, now let us proceed with fourth one. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 18 and 13 meter. Then find the area of the field. Figure is also given in the question. Like this. So diagonal is of 24 meters, perpendiculars are 13 meter and 8 meters. Okay, so we can say that diagonal equals to 24 meters and length of perpendiculars are 13 meter and 8 meter. Okay, so as we know, area of quadrilateral equals to half into diagonal into sum of perpendiculars. Okay, so half, diagonal हमारे पास है 24, sum of perpendiculars 13 plus 8, so 2 12s are 12 into 21, 12 into 21, that is 252 meter square. So this will be the एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, बस वही अप्लाई किया है एंड फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट. ओके, करेक्ट. सो राइट इट डाउन, देन वी प्रोसीड विद फिफ्थ. Okay, fifth question very easy if you remember the formula. Question 5. The diagonals of rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Say D1 first diagonal 7.5 centimeter, D2 12 centimeter. Then area of rhombus equals to half into product of diagonals. So half into, say D1 into D2. So half into 7.5, its fractional form will be 75 upon 10 and D2 is 12. So 2 6 are, 2 3s are, 2 5s are, 5 15s are, 15 5s are 75. So 15 3s are 45 centimeter square. Okay, just we have to apply the formula. So area of rhombus का formula half into product of diagonals and answer is also correct. So now write it down, then we will proceed with question 6.
Okay, now let us proceed with question 6. Find the area of rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. रोम्बस का एरिया हमें ढूंढना है. साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया है 4.8 सेंटीमीटर. इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. एक डायगोनल का लेंथ हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा ढूंढना है, लाइक दैट. सो सी रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैलोग्राम ओनली. अ पैलोग्राम in which all sides are equal is known as rhombus. So area of parallelogram is based into height, and same formula will be applicable for the rhombus also. So here side is 5 centimeter and altitude that represents height only. Altitude means a line segment joining vertex and we can say that perpendicular to the opposite side to the vertex is known as altitude. Okay, or which is representing the height only. Altitude जो है वो एक height ही represent करता है. vertex और opposite side का जो perpendicular, ठीक है, that perpendicular is known as altitude. vertex में से opposite side के ऊपर perpendicular. So area of rhombus will be here base into height. As such it is a parallelogram. So 5 into height is 4.8, 48 upon 10. 5 2s are 10, 2 and 24. So this will be 24. Just a minute. Both the things are in centimeter, so no issues. I thought this is in meter. Then 24 centimeter square. Okay. So area is with us. Now if one diagonal is 8 centimeter long, then find the length of other diagonal. It means D1 is given to us 8 centimeter. Then we have to find D2. So again area of rhombus equals to half into product of diagonals. So half into D1 into D2. But here we have area that is 24 centimeter square. So 24 into half into value of D1 8. So we can find the value of D2 by solving this equation. 2 4s are 8. Now 4 is in multiplication with D2. So here it will be in division. So D2 is equals to 6 centimeter. As such 6 4s are 24. Okay. So question 6, 24 and 6. Okay. So यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए. एक एरिया ऑफ रोम्बस with the formula of area of parallelogram, and one is the area of rhombus its own formula, that is we can say that half into product of diagonals. अब आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन हो रहा हो कि रोम्बस के एरिया का ये जो फॉर्मूला है वो पैरेललोग्राम के लिए एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा. ठीक है, ये जो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है वो सिर्फ रोम्बस के लिए. बट रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, इस वजह से हम पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. पैरेललोग्राम एक रोम्बस नहीं है, दैट्स वाई रोम्बस का एरिया पैरेललोग्राम में यूज़ नहीं होगा. ठीक है. एंड अगेन अल्टीट्यूड मतलब ध्यान रखना, वर्टेक्स में से ऑपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है दैट इज द एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड जो है वो क्या करता है, हाइट ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे ट्राइंगल में हो, रेक्टेंगल में हो. रेक्टेंगल में तो होगा ही नहीं, पर पैरेललोग्राम में हो या रोम्बस में. तो ये क्वेश्चन 6 आप लिख लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड विथ 7th वन. Okay, now question 7.
द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड. कोई फ्लोर है बिल्डिंग का और उसके ऊपर 3000 रोम्बस शेप्ड टाइल्स लगे हुए हैं. ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. रोम्बस के डायगोनल्स दे दिए हैं या टाइल्स के जो रोम्बस शेप में है उसके डायगोनल्स हमारे पास है 45 एंड 30 सेंटीमीटर. देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. मतलब कि हमें इसको पॉलिश करने का कॉस्ट ढूंढना है. अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का ₹4 लगता है तो हमें यहाँ पे हमारा मीटर स्क्वायर इन द सेंस कि पूरे फ्लोर का एरिया कितना है वो ढूंढना पड़े. पूरे फ्लोर का एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास एक टाइल्स का एरिया होना चाहिए, क्योंकि पूरे फ्लोर के ऊपर 3000 टाइल्स जो है वो हम कह सकते हैं कि स्प्रेडेड है. तो उसमें से हम कह सकते हैं कि 3000 या 3000 टाइल्स के एरिया कितना होगा. तो एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाइड बाय 3000, दैट मच एरिया विल बी ऑफ द फ्लोर. And then after we will proceed to find the cost. So first of all, for rhombus D1 यानी कि first diagonal is 45 centimeter. D2 another one is 30 centimeter. Okay. Then let this be converted into the meter. 0.45 meter, 0.30 meter. As such, 1 meter is equals to 100 centimeter. Why we are converting this into the meter? Because you can observe cost of polishing is given per meter square. It means our area must be in the meter square. So now area of rhombus equals to half into product of diagonals. So that is half into 0.45 into 0.30. So this is half into 45 by 100 into 30 by 100. So 0 will be cancelled. This is 4 5 into 3 upon 2000 meter square. I'm not simplifying this because this is not a final answer, that's why. Now area of 3000 tiles. This is area of one tile. So area of 3000 tile is equals to 3000 multiplied by area of one tile. This is 45 into 3 upon 2000. Then see, these zeros will be get cancelled. So now we can say that area of floor is equals to 3 into 45 into 3 upon 2. Again, I am not simplifying this because this is not a final answer. We want to find the cost. And as we know, cost is equals to area into rate. So area is 3 into 45 into 3 upon 2. And rate is how much? 4 rupees per meter square. So multiply by 4. 2 2s are 4. So 45 into 3 3s are 9 2s are 18. So 45 into 18 is 810 rupees because it is a cost. So polishing cost will be 810 रुपीज. ओके, करेक्ट. सो ये हुआ क्वेश्चन 7. ठीक है, हम वापस से समझे कि हमें क्या करना था, कॉस्ट ढूंढना था पॉलिशिंग का. तो वो कॉस्ट ढूंढने के लिए हमारे पास एरिया होना चाहिए, फ्लोर का टोटल एरिया कितना बनता है, क्योंकि 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया था. 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का 4 रुपीज़ लगता है. तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे फ्लोर का कितना मीटर स्क्वायर है. तो वो हमें ढूंढना था कि भाई हमारे फ्लोर का कितना मीटर स्क्वायर एरिया बनता है. हमारे पास इंफॉर्मेशन ये था कि फ्लोर के ऊपर 3000 टाइल्स लगे हुए हैं. ठीक है, और वो सारे रोम्बस शेप्ड है और उनका डायगोनल जो है वो ये है. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टाइल का पहले एरिया ढूंढा, उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास पूरे फ्लोर का एरिया आ जाए,
और उस फ्लोर के एरिया को कॉस्ट या रेट से मल्टीप्लाई किया 4, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गया 810 रुपीज. दिस इज क्वेश्चन 7. राइट इट डाउन, देन विल प्रोसीड विथ 8th one. Okay, now question 8. 1 meter equals to 100 centimeter, huh? Keep in mind. Maybe I have written 10, that's why. Question 8. Moon wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. रिवर के अलॉन्ग जो उसका साइड है ट्रेपेजियम का, वो ट्वाइस है रोड के अलॉन्ग जो साइड है उससे. इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, पूरे फील्ड का एरिया है 10500, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 10 मीटर्स. दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर्स है. मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाइट इज 100 मीटर्स. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलॉन्ग द रिवर. तो रिवर के अलॉन्ग जो भी साइड है वो हमें उसका लेंथ ढूंढना है. देखो इस तरीके का ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है. इधर हमें यहाँ पे रोड दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमारे पास है 100 मीटर्स. हियर रिवर इज देयर. अब बोला है कि रिवर के अलॉन्ग जो साइड है वो रोड के अलॉन्ग साइड से ट्वाइस है, डबल है, तो इसको x ले लेते हैं. तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ द x. ओके, तो ये चीज़ जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मेंशन करना पड़ेगा. सो लेट साइड अलॉन्ग रोड बी x. therefore side along river will be twice of x. ये हो गया. अब हमें पता है कि हाइट 100 मीटर्स है एंड पैरेलल साइड्स आर x and 2x. सो एरिया ऑफ trapezium is 10500 meter square, I think so. हाँ, 10500 meter square. तो area of trapezium is half into height into sum of parallel sides is 10500. So half into height is 100, sum of parallel sides x and 2x, तो उनका addition 10500. So we can say that कि x plus 2x will be 3x. 10500 2 डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, 100 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन. 0 0 will be get cancelled. Let this 3 be here in division, as such it is in multiplication with the x. So 3 3s are 9 and 3 5s are 15. 35 2s are 70 meters. So side along with the road will be 70 meters, but we want side along with the river, that is twice of x. So side along river is equals to 2x. 2 into 70 equals to 140 meters. Okay, so simple formula ही अप्लाई करना था, थोड़ा अलग से. तो लिख लीजिए आप क्वेश्चन 8. हाँ, लेट अस क्रॉस चेक द आंसर. करेक्ट. तो लिख लीजिए क्वेश्चन 8, देन विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन 9. Okay, now proceeding with question 9.
Top surface of the raised platform is in the shape of regular octagon as shown in figure. Then find the area of the octagonal surface. देखो प्लेटफॉर्म का शेप जो है वो इस तरीके से कुछ ऑक्टागोनल शेप हमारे पास है, लाइक दिस, और उसमें कुछ डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं. दिस इज ऑफ 11 meters, this is of 5 meters, फोर मीटर. ओके, अब रेगुलर ऑक्टागन है तो रेगुलर ऑक्टागन इन द सेंस कि जिसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये 5 है तो ऑफकोर्स ये भी क्या होगा, 5 मीटर्स होगा. इसको हम ज्वाइन कर लें. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दो तो ट्रेपेजियम बन रहे हैं, 1 and 2. तो हम ट्रेपेजियम के एरिया का क्या कर दे, ट्वाइस ले लें. इस ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास दोनों पैरेलल साइड्स है, हाइट भी है, सेम हाइट सेम पैरेलल साइड्स के लेंथ यहाँ भी होंगे. तो दो ट्रेपेजियम हो गए. तो ट्रेपेजियम का एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना पार्ट मिल जाए. अब बचा ये, तो ये तो रेक्टेंगल है, लेंथ 11 है और हम कह सकते हैं कि ब्रेथ 5 है, तो वो भी मिल जाएगा. सबका एरिया टोटल कर देंगे तो पूरे ऑक्टागन का मिल जाएगा. सो फॉर रेक्टेंगल डायमेंशंस मेंशन करना हमारा बहुत ज़रूरी है. लेंथ इज इक्वल्स टू 11 meters and breadth is equals to 5 meters. For trapezium, height is equals to 4 meters and parallel sides are 11 meter and 5 meter. So अब directly area of octagon equals to 2 into area of trapezium. ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ट्वाइस क्योंकि दो ट्रेपेजियम है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो 2 इंटू ब्रैकेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि L इंटू बी. ये 2 2 तो कट जाएगा. हाइट यहाँ पे हमारे पास है 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 प्लस 5 प्लस L इंटू बी यानी कि 11 इंटू 5. सो 4 इंटू 11 प्लस 5 16 प्लस 11 5 are 55. This is 64, this is 55. So this is 119 मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया एरिया ऑफ ऑक्टागन. तो ये इसमें लॉजिक था कि उसको दो ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल में डिवाइड करना था, रिस्पेक्टिव फॉर्मूले अप्लाई करके एरिया ऐड करना था. क्रॉस चेकिंग आंसर करेक्ट. ओके, तो राइट इट डाउन, देन विल प्रोसीड विथ 10th वन. Okay, now let us proceed with 10th question. There is pentagonal shaped park as shown in figure. For finding the area, Jyoti and Kavita divided into the two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? तो हमारे पास पेंटागोनल शेप का एक फील्ड है या तो फिर पार्क है, और उसके क्या क्या डायमेंशंस कुछ दिए हुए हैं हम देख सकते हैं. This is 15 meters, also 15, this both, and this whole is 30 meters.
Okay. Now, first of all, we will proceed with Jyoti's diagram. How exactly she has divided it into the two trapezium we can observe. ओके इसी पार्क का एरिया ढूंढने के लिए ज्योति ने क्या किया है, उसको दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइट और दो पैरेलल साइड्स. देखो ये तो 15 है, ये भी हमारे पास है 30, तो दो तो आ गए हमारे पास. हाइट क्या होगा, तो टोटल 15 था, तो ये 15 का हाफ यानी कि 15/2 हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा. So we can say that h is equals to 15. For Jyoti's diagram we are writing the dimensions, and parallel sides are 15 meter and 30 meter. अब ऐसे दो ट्रेपेजियम है तो हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई. सो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. 2 कैंसिल, हाइट का वैल्यू है हमारे पास 15 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 15 प्लस 30. सो 15 इंटू दिस विल बी 45. सो 15 इंटू 45 that is 675 मीटर स्क्वायर. तो ये ज्योतिष डायग्राम जो भी उन्होंने जैसे भी डिवाइड किया था वैसे हमने एरिया ढूंढा. ठीक है, देन something wrong is there. Is everything given in the meter? Yes. Okay. Height 15/2 meters we have to consider. In the place of that we have considered 15. So let us have correction. This is 15/2 and sum of parallel sides 15 plus 30. So 15/2 multiplied by 45. So 15 into 45, that was 675, divided by 2, that is 337.5 meter square. Okay, so first of all you just write it down, then we will proceed with Kavita's diagram. Okay. Okay, now let us proceed with Kavita's diagram. Same park is divided in some figures by Kavita in different way. देखो कविता ने किस तरीके से एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में इसको डिवाइड किया है, ये उन्होंने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर है, कैसे पता चला, ऑफ कोर्स तीनों साइड्स इक्वल है, ये भी 15 ही होगा, सीधी सी बात है. तो ये एक स्क्वायर है और ये हमारे पास ट्रायंगल है. ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर आप रिवाइज करो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस तो है ट्रायंगल का लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है, तो वो यहाँ से मिलेगा. ये टोटल 30 है. ठीक है, ये टोटल 30, उसमें से इतना 15, तो बाकी बचा वो भी कितना होगा, ऑफ कोर्स 15 होगा. सो मेंशन करें फॉर स्क्वायर, तो लेंथ
L is 15 मीटर्स, उसका लेंथ जो है वो 15 मीटर्स है. फॉर ट्राइंगल हाइट इज इक्वल्स टू दिस होल 30 माइनस 15. तो ये मेंशन करना होगा इस तरीके से कि भाई हाइट कैसे आया, तो ऐसे आया. एंड बेस B इज 15 मीटर्स. तो एरिया ऑफ पार्क equals to area of square plus area of triangle. Area of square L square, area of triangle half into base into height. So L square, that is 15 square, plus half into base 15, height is also 15. 15 square 225. 15 into 15 225 upon 2. So 225 divided by 2 is 112.5. 225 plus 112.5. So this is 337.5 मीटर स्क्वायर. ओके, यही हमें मिल रहा था. तो ये कवितास डायग्राम के थ्रू हमने एरिया फाइंड किया. ऑफ कोर्स एरिया तो सेम ही रहेगा, हम जैसे भी डिवाइड करें. तो ये आप लिख लीजिए. देन वी विल प्रोसीड विथ लास्ट क्वेश्चन 11. ओके, now question 11. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 into 24 cross 28 centimeter and inner dimensions are 16 centimeter cross 20 centimeter. Then find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अब देखो, आपको डायग्राम पहले तो ऐसा दिया हुआ है. इस तरीके का कुछ हमारे पास पिक्चर फ्रेम या फोटो फ्रेम है. अब इसके सेक्शंस यानी कि ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 सेक्शन है जो ट्रेपेजियम शेप में है. इनके हमें क्या करना है, एरिया ढूंढना है. डायमेंशंस हमें दिए हैं इसके 24 क्रॉस 28. And inner dimensions are also 16 cross 20. ओके, तो यहाँ पे हमें इन चारों सेक्शन के क्या करना है, एरिया ढूंढना है इंडिविजुअली. ठीक है. विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. सेक्शन का विड्थ जो है वो क्या है, सेम है या इक्वल है, ऐसा हमें बताया गया है. तो हम हर एक को सेपरेट ट्रेपेजियम ऑब्जर्व करेंगे. तो 1 और 2 के लिए डायमेंशन सेम होंगे, 3 और 4 के लिए क्या होंगे, डायमेंशन सेम होंगे. तो ट्रेपेजियम का अगेन एरिया ढूंढना है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड्स तो है हमारे पास, लेकिन अगेन हाइट नहीं है. तो हाइट के लिए हमारे पास कुछ लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए. तो देखो, यहाँ पे इतना पार्ट जो है वो हमारे पास है 24. This much is 24. This much part is 16. We need this much part. This will gives us the width, or else we can say that height of the trapezium. तो अगर हम 24 में से 16 रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास कितना, ये दोनों जितना लेंथ बचेगा. पूरा 24 है, इतना 16 है, तो 24 में से 16 चला गया तो ये दोनों बचेंगे. डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एक आ जाएगा. सो
height of trapezium इक्वल्स टू 24 माइनस 16 डिवाइड बाय 2. ठीक है, 24 पूरा लेंथ, 16 इतना, तो बाकी क्या बचेगा इतना, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सिंगल आ जाएगा हमारे पास. सो 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर. अब हर एक ट्रेपेजियम का हाइट क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सबका विड्थ इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि फॉर सेक्शन 1 एंड 2, 1 और 2 के लिए क्या एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हमें इंडिविजुअल एरिया ही ढूंढना है, दोनों का टोटल नहीं ढूंढना है. सो हाफ हाइट यानी कि 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 16 एंड 24, तो उनका एडिशन, सम इन द सेंस. तो 2 2s are 4, 2 into this will be 30 addition, so 60 centimeter square. Then for section 3 and 4 इन दोनों के लिए, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो हाफ, अगेन हाइट तो विड्थ सबका सेम है, सो 4, और पैरेलल साइड में यहाँ आएंगे 20 एंड 28. 2 2s are 4, सो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 48, सो दिस विल बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया हर एक सेक्शन का एरिया. 2 सेक्शन का होगा 60 60, 60 और 60, 96 और 96. Let us cross check the answer. ओके, हमने एडिशन में यहाँ गड़बड़ कर दी. 24 प्लस 60 दैट विल बी 40, देन 40 2s are 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 2 सेक्शन का 80 80 होगा, और यहाँ पे बाकी के 2 का 96 और 96 होगा. ओके, सो हियर वी आर कंप्लीटिंग विथ exercise 11.2. Now in next session we will observe the formula for the solids. 3 solids are there in our syllabus, cube, cuboid and cylinder. So in next lecture we will observe the formula of area and volume, and then we will proceed with the further exercise. Okay, so see you in next session. Take care.